Today I'm going to be sharing some tips and tricks for ICSE Class 10 half-yearly exams, some mistakes that you should avoid during your exams, during your preparation. Half-yearly exams are literally the most difficult exams to score in. Like, you must be so confused, ये क्या बोल रही है, like usually. Because final exams seem to be the most difficult just because the syllabus is very huge, but that is not the case. देखो final तक आते आते everyone is very thorough with the syllabus and you have enough time for practice. But the case for half-yearly is very different. First of all, your unit tests have just ended. You don't have much time and so much to prepare, especially right now when इतने सारे schools में अभी half yearlies चल रहे हैं. Last moment tips क्या होनी चाहिए, how can you score above 90% easily. So step number 1 is studying and remembering. ओके, हाउ डू यू स्टडी, हाउ टू रिमेंबर, क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड काफ़ी कुछ पढ़ने को है. सिलेबस उतना भी बड़ा नहीं है, इट्स इजीली डूएबल. लाइक यू कैन कंप्लीट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद इन 1 or 2 days. दैट इज टोटली सफिशिएंट. यू कैन कंप्लीट इट लाइक वेरी थरली. उसके लिए आई वुड से यूज वन शॉट वीडियोज फॉर रिविजन. फर्स्ट टेक योर टेक्स्ट बुक, रीड इट योर सेल्फ, रीड योर क्लास नोट्स, अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न इट while you are reading, and then also practice the question answers which are given in the back and which your teacher has made you write in the textbook that your teacher checks in school. Definitely do those because those questions are very very important. Another thing, get previous year half yearly papers of your school from your seniors. Half yearly papers are not common for every school, so you will have to talk to your seniors. It's best to have some senior friends. Abhi class 11 and 12 mein you should find people who you can ask for papers, like someone who is ready to help, and then you can circulate among your friends and classmates, so it will help everyone. Agar wo nahi kar pa rahe, you can take half yearly papers of different schools all over India from my Telegram group, link is in the description, and it will really help you. It is very important to practice questions mainly, चाहे आप कहीं से भी करो, कोई रेफरेंस बुक से करो या यूट्यूब से करो या टेक्स्ट बुक से ही कर लो. द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू डू क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि उसी से ही मार्क्स आएगा. लाइक आप पढ़ लोगे बट देन वो क्वेश्चन पेपर देख के ना सॉल्व नहीं होते हैं, है ना. यू नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना you can't do anything. And if you want to score really well, you need to revise multiple times. जैसे what I would do, I would take the chapter, I would learn it, ठीक है, I would read multiple times, 4 to 5 times minimum. I know time is very less right now, but you can still do it. It is 100% doable. I'm telling you, 10th is not that difficult, especially when you come to 11 and 12, you will realize कि 10th actually कितना easy था. The main thing is that 10th वाले बच्चे बहुत complicate कर लेते हैं and वो stress में just they lose their patience and बस सब chaotic and कुछ नहीं हो पाता. So it's like you need to be focused, you need to be calm, you need to not complicate things, है ना. आराम से. The procedure for scoring really good marks is very easy. You need to study, practice questions, be calm and give your paper nicely. That is it. Is not that complicated as it seems and it is easily doable even if you don't consider yourself as a really good student. Like average हो या उससे भी बुरा चल रहा है half yearly में या units में marks अच्छे नहीं आए, because I've been getting a lot of comments also recently कि you know मेरे 60% रह गए subject में, अब मैं क्या करूँ, वैसा टाइप का. Focus on the subjects you're weak in. Like ऐसा होता है ना, you're good at a subject, for example you're really good at chemistry, then आप बस chemistry ही पढ़े जा रहे हो, आपका मन हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, and you just with that subject. बाकी subjects के बारे में भी सोचना पड़ता है ना. So you need to balance everything out very nicely. Half yearlies का एक thing अच्छा रहता है कि exams के बीच में at least 1 day का gap तो रहता ही है. I would recommend studying only that chapter which is coming the next day. जैसे ये मेरे को CBSE का थोड़ा गड़बड़ लगता है, like the science is like combined physics chemistry. I know they have to study less, but don't get jealous of them, okay, it's fine. ICSE is good, at least for sciences. I would say ICSE is a lot better. Initially आपको ज़्यादा पढ़ा लेंगे लेकिन 11-12 में
आप पढ़ोगे ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइक इट विल बिकम सो ईजी जस्ट बिकॉज यू हैव स्टडीड सो मच इन 10th 11 and 12 is going to be really easy. But CBSE students do have this advantage that their English, Hindi and all is still better than ICSE. Hindi I'm not sure, but English is definitely better. I just cannot deal with Shakespeare and old English and it's just stupid in my opinion. But yeah, तो जो भी है उसका कुछ कर नहीं सकते. We can't change the syllabus, right? So just don't get stuck on that, है ना. जो दिया गया सिलेबस में यू हैव टू स्टडी, सो स्टडी एवरीथिंग. डोंट लीव आउट एनी चैप्टर, जस्ट डू नॉट डू दैट. एंड ऐसे नहीं कि यू जस्ट रेड इट एंड यू जस्ट गोइंग टू सिट इन द एग्जाम एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन आंसर्स कर ही लेना अच्छे से सब कुछ रीड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. इट विल रियली हेल्प यू गेन गुड मार्क्स. अ स्मॉल लिटिल थिंग सा डायरी ऐसा छोटा सा है, आई थिंक इट्स A5 साइज. You could get this and जैसे एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो, like write the chapter name on top and just make short notes. तो मैंने भी एक पेज बना रखा है. It could really help you क्योंकि क्या होता है जब आपके नोट्स बहुत मोटे होते हैं ना, see if you have time, if you have the energy and इतना मोटिवेशन लाइफ में है, then you can easily do it. It will help much better than short notes, I think. If you keep reading the same notes again and again, but बहुत होते हैं ना जिनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का, लाइक मोटे नोट्स हो. जैसे मेरे लास्ट नोट्स वाली वीडियो जो थी फिजिक्स नोट्स जिसमें मैंने शेयर करे थे, उसमें देयर वाज अ कमेंट दैट सेड कि मेरे नोट्स कौन सा इसकी बुक से ज़्यादा मोटी है, विच इज़ फनी. या हाँ होता है, लाइक ठीक है, इट वॉज उस टाइम का जोश था जो भी है. बट येस, इफ़ यू डोंट वांट टू मेक सच बिग नोट्स, इतना डिटेल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन मेक, देखो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए नोट्स बनाना इज़ अ गुड ऑप्शन. क्योंकि क्या होता है ना, इफ़ यू नॉट मेकिंग नोट्स देन एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. व्हेन यू मेकिंग नोट्स यू एंजॉइंग इट, आपका मन कर रहा है टू कंप्लीट द वर्क, है ना. ऐसा भी होता है वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपने 1-2 पेज अच्छे से भरा एंड यू विल बी लाइक ओके आई नीड टू फिल लाइक 5-6 पेजेस मोर टुडे. सो उसके बाद आपका मन करेगा टू फिनिश इट ऑफ. फिर ऐसे करके सारे चैप्टर्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं. एटलीस्ट दैट इज़ हाउ आई स्टडीड इन क्लास 9 and 10. It really changed a lot of things for me and it was very helpful. I only made such big notes for physics and chemistry because I enjoyed it. Maths में it wasn't really required. Maths का एक अलग प्रोसीजर है to finish off chapters and you know पढ़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है ना हर सब्जेक्ट का. फॉर एग्जाम्पल इन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, स्पेशली हिस्ट्री, मैंने टेक्स्ट बुक मार्किंग्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था एंड इट रियली वर्कड. आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट रियली वर्क्स. वो हर सब्जेक्ट का इज डिफरेंट. फॉर बायो ऑल्सो आई वुड से टेक्स्ट बुक मार्किंग्स इज अ मस्ट. हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, ऑल ऑफ दैट. लिटरेचर के लिए टेक्स्ट बुक मार्किंग्स डोंट रियली वर्क फॉर मी, बट क्वेश्चन आंसर्स आर द वे आई यूज टू स्टडी एंड इट विल रियली हेल्प यू. और जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज वाले वीडियो में दिखाया था ना कि वो कीवर्ड्स और मार्किंग स्कीम कैसे देखते हैं और वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी देख लो. इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट कंप्लीटली विथ यू, लाइक एवरी सब्जेक्ट का one पेपर आई विल डिस्कस. सो इट विल रियली हेल्प यू. 2020 का सेट ले सकते हैं, 2021 का ले सकते हैं, जो बोलोगे मैं कर लूँगी. इफ़ यू वांट जस्ट लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है आपको क्या देखना है और फिर मैं कुछ भी पोस्ट करूँगी तो फिर समझ रहे हो, एक कनेक्शन होना चाहिए. लाइक आई शुड नो व्हाट यू वांट एंड यू शुड गेट व्हाट यू वांट, है ना. यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स. अब देखो तो मैं अच्छा स्कोर करा के, इट्स नॉट लाइक ये सब करके मेरे मार्क्स कुछ चेंज होने वाले. लाइक आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई 10th, I've completed my 12th also, so it's not really changing anything for me academically, but it really makes me happy that I can help you score good marks also. Like if you will be happy, I'll be happy and I could help you with my experience जितना रहा है of scoring good marks. I would say 97% is a good score, yeah, kind of. हाँ ठीक है, trying not to brag but हो जाता है कभी कभी. एंड फॉर हाफ ईयरलीज आई वुड से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर पुराने पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आस्क योर स्कूल टीचर्स टू चेक योर वर्क वेरी नाइसली, सब चीज़. एंड हाफ ईयरली का मेन पर्पस शुड बी प्रैक्टिस फॉर योर मेन एग्जाम. मतलब आपको जब वापस से मिलेगा आंसर की, प्लीज़ एनालाइज योर पेपर. अगर एनालाइज नहीं करोगे यू विल नॉट इम्प्रूव. इफ़ यू डोंट इम्प्रूव वही सेम गलतियाँ प्री बोर्ड्स में करोगे और वही सेम टू सेम गलतियाँ बोर्ड्स में करोगे एंड जो नहीं करना है. आपका मेन रिजल्ट इज गोना बी द 10th रिजल्ट, बोर्ड एग्जाम
रिजल्ट, क्योंकि जब आप बोर्ड दे के आओगे तो द बोर्ड विल गिव यू अ रोल नंबर एंड वो आप ऑनलाइन डालोगे, तब आपको सिर्फ अपना फाइनल रिजल्ट ही स्क्रीन पे दिखेगा एंड दैट इज द ओनली रिजल्ट दैट काउंट्स. एंड फॉर हाफ ईयरली आई वुड से व्हेन यू राइटिंग द आंसर स्क्रिप्ट, स्केल प्लीज ले जाना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये ले जाना, पेंसिल ले जाना, पेन लेके जाना, कीप एवरीथिंग. यूज दिस वीडियो दैट आई पोस्टेड लाइक लास्ट ईयर, almost 2 years back with me video for boards. उसको thoroughly follow कर लेना. पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वीडियो मैं पोस्ट करूँगी जल्दी एंड वो मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ऑलरेडी कमेंट्स में बोल दिया है बनाने को, सो आई वुड डेफिनेटली डू दैट. एंड पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, वर्क नीट रखना. अभी यू हैव टाइम टू प्रैक्टिस योर हैंड राइटिंग इज वेल, सो हैंड राइटिंग अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट वो हैंड राइटिंग वाले बुक्स लेके नहीं. इट्स लाइक यू टेक अ चैप्टर, है ना, आपको एक पोर्शन लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, आप फास्ट लिखने की कोशिश करो एंड राइट इट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. सो इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग दैट आपका अच्छा होता जाएगा. बिकॉज आई यूज टू राइट, मैंने जैसे अपने फिजिक्स के नोट्स दिखाए उसी वीडियो में जैसे मैंने पहले दिखाया था, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे नोट्स लिख रखे लेकिन सब मैंने फास्ट ही लिखा है एंड आप हैंड राइटिंग देख ही सकते हो, काफ़ी नीट एंड लेजिबल है. सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उससे. लाइक इफ द टीचर इज हैप्पी विद द पेपर दे विल गिव यू मार्क्स. ऐसे यू नो उसका एडवांटेज उठा लेना, ऐसे नहीं कि गंदा हैंड राइटिंग, स्क्रिबलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. हाफ ईयरली के लिए पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट इज़ लाइक अ चेक पॉइंट कि आपने अगर हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर लिया तो फाइनल्स में एक मोटिवेशन रहता है. पर हाफ ईयरली में अगर बुरा रहा है ना, अगर आपका हाफ ईयरली हो गया है या होने वाला है और इतना अच्छा नहीं जा रहा है अभी तक प्रेपरेशन, डोंट लूज होप, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, बिकॉज द मेन गोल इज योर बोर्ड एग्जाम. उसके लिए ही आप प्रिपेयर कर रहे हो. इट्स लिटरली सो लेट at night, I just want to sleep. I have some work also, but I'll finish off this video really quickly. I hope you found this video helpful. इसमें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना. I'm posting every day at 5 PM and मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी that will help you score really good marks in ICSE class 10 boards. Even if you're a junior or a senior, these tips will really help you. And if you want, I could start posting for other classes as well, but अभी के लिए I'm just doing 10th बिकॉज अच्छा गया था मेरा 10th और आपका भी अच्छा जाने वाला है. आई कैन फील इट, यू नो. जस्ट स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग, कीप इन टच विथ मी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, you can just comment. I reply, I read each and every comment and I will help you out. Join my telegram groups for more help from other students, more notes, more PDFs, everything you will get, है ना, अच्छे से. And I'll keep posting on YouTube. See you tomorrow at 5 PM. woman,